नमस्कार, जेडीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। इस बार की बजट में जम्मू कश्मीर को 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का तोहफा। पानी बिजली के बिल में भी 50% की छूट। श्रीनगर में मौसम विभाग ने 4 मार्च से मौसम की स्थिति में सुधार की भविष्यवाणी। डीसी बडगाम ने रमजान में व्यवस्थाओं की समीक्षा। और जिला पुंछ द्वारा जीडीसी सुरनकोट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग विरोधी संगोष्ठी की गई आयोजित। केंद्र में मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा मिला है। उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद मनोज सिन्हा ने पहली बार राज्य के लिए कई सारे ऐलान किए हैं। सिन्हा ने 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 साल तक पानी और मुफ्त बिजली बिल का 50% माफ किए जाने का एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। ये कारोबारी समुदाय को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 साल तक पानी और बिजली का बिल 50% माफ किए जाने का भी बड़ा ऐलान किया है और सभी कर्जधारकों के मामलों में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 50% ब्याज देने का बड़ा फैसला किया गया है। ये एक बड़ी राहत होगी जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। Who look to you with hope for stability and growth. For the first time this winter, my government, through close coordination between the administration and elected representatives, took comprehensive measures to minimize disruptions to the daily lives of the people during snowfall. This synergy enabled one of the swiftest restorations of essential supplies in Kashmir, including efficient snow clearance. Additionally, the power supply remained one of the most reliable with minimal interruptions. I extend my sincere appreciations to my government for their dedication and unwavering commitment to meeting the expectations of the people and ensuring seamless winter preparedness. This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes for a brighter future. For the first time, the Honorable Chief Minister has personally chaired meetings for all 20 districts separately, engaging directly with the elected representatives to understand their aspirations, regional needs, and development priorities in budget formulation. The voices of the people are again shaping the allocation of resources and the prioritization of development goals. This budget is a true celebration of democracy, an expression of the dreams and expectations of every household, every community, and every region of Jammu and Kashmir. It marks a moment of renewal and empowerment where the collective efforts of the people's representatives are shaping the future of this land. This budget represents a new era of
participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens of Jammu and Kashmir. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability, and progress. We take immense pride in our composite culture and centuries-old traditions of amity and brotherhood. My government is committed to preserving the unity and diversity that defines Jammu and Kashmir. It is firmly committed to maintaining peace and harmony, ensuring that the aspirations of our people are protected from divisive influences and cultivating an inclusive society built on mutual respect and harmony. Path to a prosperous and peaceful future. As I have mentioned earlier, my government remains fully committed to implementing its promises made to the people as a representation of the people's aspirations for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It will work relentlessly on the three principles of economy, ecology, and equity that will shape our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Good governance remains the cornerstone of a prosperous and harmonious future for Jammu and Kashmir. My government remains firmly committed to transparent and accountable decision making, ensuring the efficient and effective allocation of resources so that the people of Jammu and Kashmir fully benefit from. श्रीनगर में मौसम विभाग ने 4 मार्च से मौसम की स्थिति में सुधार की भविष्यवाणी की है। 9 मार्च तक आसमान साफ रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 10 से 12 मार्च के बीच हल्की सी बारिश और बर्फबारी का एक दौर होने का अनुमान है। मेट श्रीनगर के निर्देशक डॉक्टर मुख्तियार के अनुसार जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तरी कश्मीर, मध्य कश्मीर और दक्षिण कश्मीर के साथ साथ डोडा और किश्तवाड़ जिलों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना भी है। देर रात से शुरू हुई मौसमी गतिविधियां लगातार बर्फबारी से ऊंची चोटियों को प्रभावित कर रही है, जबकि मैदानी इलाकों में ज्यादातर बादल छाए हुए हैं। डॉक्टर मुख्तियार ने आगे चेतावनी भी दी है कि लगातार बारिश से पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी जिलों में भूस्खलन हो सकता है, जिससे संवेदनशील इलाकों में पत्थर गिरने का बड़ा खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों को विशेषकर हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों के लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। वहीं अधिकारियों ने यात्रियों को सुरक्षा के लिए प्रशासन और यातायात विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की सलाह दी है। बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, खासकर सेकंड लेट नाइट और थर्ड को जो एक एक्टिविटी फिर से जो लगभग हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में लगभग दरमियान दर्जे की बर्फबारी और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और इसी तरह साउथ कश्मीर, डोडा किश्तवाड़ के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी 4 ऑनवर्ड्स मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकते हैं। लगभग 9 मार्च तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहेगा और फिर 10, 11, 12 के बीच में एक बार फिर जो है एक्सपेल है लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो का। तो कमिंग डेज में हम इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी एक्सपेल जो करंटली चल रहा है वो इंटरमीडिएटली कुछ एक जगहों पे कंटिन्यूस, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों में थोड़ा सा बीच बीच में क्लाउडी, तो खासकर आज देर रात तक रहने के चांस हैं इंटरमीडिएटली, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मोर और लेस कंटिन्यूस है। बाकी 4 ऑनवर्ड्स वेदर जो है ड्राई है।
तो 10-11 के बीच में एक्सपेल है। तो कमिंग डेज में हम इसमें और डिटेल इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम सिराज न्यूज़ 18। जिस तरह हमने देखा गुज़श्ता दिनों में ज़मीनी सफ़र भी मुनक़ता रहा, हवाई सफ़र भी थोड़ा मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। बाकी जो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी जगहों पे रोड्स अभी भी बंद है पहाड़ी इलाकों के अंदर। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ताज़ा अभी 2 दिन से ट्रैफिक चल रहा है। तो लैंडस्लाइड्स के फिर चांसेस हैं क्योंकि बारिशें जो है मुसलसल चल रहा है खासकर आज अर्ली मॉर्निंग से। और इसी तरह जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर हिली डिस्ट्रिक्ट्स, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, तो इन जगहों पे भी जो है आपका लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स या कुछ एक जगहों पे रॉक फॉल के भी चांसेस हैं। तो बिल्कुल एहतियात करें लोग क्योंकि हादसात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट स्पेल में भी जो है कुछ 1-2 डेथ्स हुए थे। तो लोगों को बिल्कुल एहतियात करना चाहिए और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी, उसको पूरी तरह पालन करें। सर चूँकि हमने देखा तो लास्ट स्पेल के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल जो है एक्यूमुलेट हुआ है, सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ। और अपकमिंग स्पेल में जो ताज़ा बर्फबारी है तो एवलांच काफ़ी चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से। तो ताज़ा बर्फबारी के कारण जो एक बार फिर जो है स्नो एवलांच के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो बिल्कुल एहतियात करें खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग रहते हैं और जो स्लोपी एरिया से या जहाँ पे हर साल एवलांच आते हैं तो उन जगहों पे जो है वेंचर आउट ना करें और बिल्कुल एहतियात करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है। रमजान के सुचारू और परेशानी मुक्त महीने को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त डीसी बडगाम अक्षय लांब्रू ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी कार्यालय परिसर में जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और बिजली आपूर्ति, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, फायर टेंडर की तैनाती, कचरा संग्रहण, पुलिस कर्मियों की तैनाती और यातायात प्रबंधन आदि सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन चर्चा की गई। रमजान महीने के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। डीसी ने मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस विभाग को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं सीएमओ को निर्देश दिया गया कि सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पूरे महीने 24 घंटे स्वास्थ्य टीमों के साथ साथ एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला पुलिस पुंछ द्वारा नशा विरोधी समिति विभाग के सहयोग से जीडीसी सुरनकोट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपने सहयोगियों की देखभाल अभियान विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और जीडीसी सुरनकोट के एनसीसी की संगोष्ठी का ये विषय था, नशीली दवाओं का दुरुपयोग मानव समाज के लिए का अभिशाप। मोहन शर्मा और एसपी पुंछ मुख्य अतिथि रहे और डॉक्टर रानी मुगल योग्य प्रिंसिपल जीडीसी सुरनकोट ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉक्टर जावेद मंजूर, डॉक्टर अशरफ अहमद और डॉक्टर तबारक आमीन खान ने संगोष्ठी में निर्णायक की भूमिका निभाई। संगोष्ठी में 10 छात्रों ने भाग लिया और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके दुष्प्रभावों पर जानकारी की। वहीं प्रतिभागियों ने भी जिले की सराहना की और प्रशासन और पुंछ पुलिस को बहुमूल्य जिंदगियों को बचाने के लिए ड्रग्स माफिया के खिलाफ उनकी सफल लड़ाई और जागरूकता कार्यक्रम के लिए अपना धन्यवाद दिया। जय 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 हे। A research said that 4.17% of the students, and if we talk about Surankote, the situation is. A local survey revealed that 12.5% of students of Surankote ने यहाँ पे बोला है, and a very detailed description by Mariam, the second last speaker I guess. बहुत बढ़िया बोला आप सभी ने। Now coming to the point, drug addiction. मुझे अब इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मोटिव है पुलिस का वो यही है कि इसका जो कैंपेन का नाम रखा है, हमने रखा है केयरिंग फॉर योर कलीग कैंपेन। तो कलीग वो इस सब पे लागू होता है। मेरे साथ जो मेरा कलीग है, आपके साथ जो आपका कलीग है, बीट स्टूडेंट, बीट फैकल्टी, सोसाइटी में यहाँ पे जैसे हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स आए हैं, इनके भी जो कलीग होंगे, तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। सबके लिए ये लागू होता है। आपको अपने कलीग का ध्यान रखना है एंड इट स्टार्ट विद द फैमिली, ठीक है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, अब पुंछ में है तो थोड़ी बहुत शायरी करनी पड़ती है एक्चुअली, ठीक है, कि बैठा करो जाके माँ बाप के साए में,
पत्ते जब तक पेड़ों से लगे रहते हैं तब तक हरे रहते हैं। तो आपको जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही लागू होता है। बट आपको टॉपिक से थोड़ा दूर लेके जाऊंगा। जैसे सुबह सारे बच्चे आते हैं, सभी एक जैसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते, ठीक है। आप बेटा, आपने देखा होगा आपकी मदर, अभी तो माह रमजान चल रहा है, तब भी सुबह जल्दी उठ के सहरी बनानी पड़ती है, एंड आपके मदर फादर आपके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। मेरा शुभ प्रभात। आज मैं समरीन अफजल आप सबके समक्ष नशा बुराई है। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान, कोकेन जैसे घातक मादक दवाओं और पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ साथ ही इसके सामाजिक वातावरण पर भी असर पड़ता है। नशा किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वह व्यक्तित्व के निवास, निर्धनता की वृद्धि और मृत्यु का द्वार खोलता है। इससे परिवार के परिवार टूट रहे हैं। The drug addiction among the youth. This issue is not only destroying individual lives but also weakening the foundation of our society. Drug abuse refers to excessive and harmful use of addictive substances like heroin, cocaine, alcohol, and other drugs. What begins as a moment of pleasure often turns into lifelong curse, affecting not only the addict but also their family and society also. As Allama Iqbal said that जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं, जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए जीना ही हकीकी जिंदगी है। बिजबेहड़ा में जेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ से बिजबेहड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग जिला प्राथमिक हस्तक्षेप केंद्र यानी कि DIC अनंतनाग और ENT और सामुदायिक चिकित्सा विभागों के सहयोग से वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया गया और साथ ही जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा प्रदान की गई मुफ्त जांच और परामर्श सेवाओं से 106 दिव्यांग बच्चों को इसका लाभ हुआ। कार्यक्रम में जावेद अहमद टॉक, मानवाध्यक्ष मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन बिजबेहड़ा, डॉक्टर मुजफ्फर, सीनियर रेजिडेंट कम्युनिटी मेडिसिन GMC अनंतनाग व अन्य मुख्य रूप से भी वरिष्ठ लोग इसमें उपस्थित रहे। कितना है दुनिया में 2050 तक प्रेडिक्ट वर्ल्ड हेयरिंग डे हमेशा मनाया जाता है और WHO ने आज एक थीम रखा है, चेंजिंग द माइंडसेट एंड केयरिंग फॉर एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन, जिसका मकसद है कि हर कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला ने एज़्ज़ा दिए है, कानों का बहुत ख्याल रखा जाए। एक बहुत बड़ा चंक है लोगों का जो जम्मू कश्मीर में भी, चाहे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, जवान साल लड़के लड़कियां हो, उनमें हेयरिंग इश्यूज़ बहुत सारे हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। और हेयरिंग के साथ साथ जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हेयरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी के शिकार होता है। कि हमें ज़्यादातर ऐसा पता चलता है कि जब एक कोयत गोई और समाज से महरूम बंदे को किसी की बात समझ नहीं आती है तो हम उसको पागल समझते हैं और उसको हेयरिंग के बजाय उसको मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार कह देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा उनके साथ नाइंसाफ़ी भी है और सोशल इनजस्टिस भी है। तो हम आज के दिन के हवाले से यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने कानों में अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है तो हमारे यहाँ GMCs में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कि कानून की सुनने में आपको तकलीफ है और आपने इसको इग्नोर किया तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप दुनिया पे, अपने समाज पे बोझ बन जाते हो, एक पैरासाइट बन जाते हो। आज जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया जिसमें लगभग 100 बच्चों का
उनका हेयरिंग टेस्ट किया गया और इसके साथ साथ ये जो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स, ऑडियोलॉजिस्ट्स, जो अलाइड टीम आई थी, पैरामेडिकल स्टाफ आया था, तो इन्होंने जो मेहनत यहाँ पे की इसका हम दाद देते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑडियोलॉजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और वर्ल्ड के साथ साथ इस छोटे से एक कस्बे में भी ये दिन मनाने का यही मकसद रहा कि हर जगह एक आवाज़ उठे कि आप डिसेबिलिटी को हमें भगाना है और सेहतमंदी को यस कहना है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जिन चीजों के लिए हम आवाज उठाते थे वो असंवैधानिक है। अब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन चीजों को वैध बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अरविंद केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। लोगों ने आपको किस लिए वोट किया, ये कई प्रश्न उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर सरकार पर ये बड़े प्रश्न दागे हैं। वहीं अन्य बातें भी उन्होंने मीडिया के जरिए रखी। से किस तरह निकालना है उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी, पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। और मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी बारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजेशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्ज, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। हाजिन के निवासियों ने पानी की कमी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हाजिन बांदीपुरा रमजान के पवित्र महीने के दौरान उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले का हाजिन शहर पीने के पानी की भारी कमी का लगातार सामना कर रहा है, जिससे हजारों परिवार परेशान हैं। वहीं महिलाओं सहित प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को उन्होंने सरकार के समक्ष रखा। वहीं अन्य मुद्दे भी उन्होंने मीडिया के जरिए सरकार के समक्ष लाए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। बोनो पानी के रखो तो पानी पाना भाषा बोनो तहसीलदार तुम जो हाजिर हो, तहसीलदार हाजिर हो, तहसीलदार।
चाहिए कि हमारे इलाके में तकरीबन 6-7 दिनों से मुसलसल पानी नहीं है। क्यों, क्या वजह है? हमारा तो एमएलए भी अपना है, वो क्यों नहीं इस पर बात कर रहे? इसलिए हमारे इस गांव में देखिए कितनी माएँ बहनें सड़कों पर निकल आई है पानी के लिए। आज मैं सच बोल रहा हूँ, रोजे रखे हुए सच बोलता हूँ, खुदा की कसम। जब मैंने शहरी में दूसरा पानी का गिलास पीने को कहा तो मुझसे कहा गया कि घर में पानी नहीं है। ये अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए, ठीक है, हम मानते हैं प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कोई हाल है जिससे ये परेशानी दूर हो। ये छोटा मोटा गांव नहीं है, हाजिन इतना बड़ा गांव है। ये अगर आप 100-200 गाड़ियां भी लगा देंगे तो भी पानी की किल्लत को आप पूरा नहीं करेंगे। माह मुबारक का महीना चल रहा है, हम आपसे आपकी चैनल के वसादत से गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके पानी को जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए। रमजानस मज परेशान आज गमत, आज द्राय आज माज बेन वत पे मतलब द्राम गई मजबूर आज माह मुबारक मज कोरन बेन हंद बुथ हावन खतर वपर लोंडन ये अम चीज किन आब मूजूद परेशान, अम चीज किन सोन करू सा मुराद दसी पूर गया 7-8 दो आब आसन अम चीज की परेशान। 1-2 दिन के ब्रेक के बाद कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है, जो आज सुबह से ही जारी है। हंदवाड़ा की बात करें तो हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के मैदानी इलाकों में लगभग 4 से 5 इंच की बर्फबारी हुई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम 1 फुट ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने निवासियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।